this. So if you take up yesterday's newspaper, the first thing that comes is one of the stories that you can put in your ethics or essays, which is Downtown Srinagar to Durand, a story of how football became an antidote to drugs. Now, there's a topic in your in your society section in paper number 2, and there can be questions on drugs as well, and exposure to drugs. This is one area where the northern Indian states are struggling quite a bit, and sports is one way, and you can give this example both in ethics as well as in your essays, where you can see that the number of kids in Kashmir were addicted to drugs, kids as old as 11 and 12 years old. And then there was there's these the NGO owner and as well as three people who started Downtown Heroes FC, and that led to them participating now in Durand Cup. So I also want you to read about what is this Durand Cup that happens in football. So cricket और football को लेके even the sporting events that are there, the major cups that are there, you should know. So इस sporting events में for example boat race जो है, एक नेहरू boat race होती है केरला के अंदर, you should be aware about that. Similarly sporting events में football के major cups हैं, Durand Cup is one of the major cups. क्रिकेट में मेजर कप्स कौन से, डोमेस्टिक कप्स कौन कौन से होते हैं, ये ऑल ऑफ दिस यू शुड हैव अ डिसेंट आइडिया अबाउट. सो दिस इज अ गुड स्टोरी टू कवर, एंड एथिक्स के अंदर आप डाल सकते हो. Then lack of consensus on Ukraine at G20 meet summit, at G20 summit to take a call. So basically there was this meeting of finance ministers and central bank governors that ended in Gandhinagar, and there was no consensus on the issue of Ukraine Russia, whether you should call it a war or not, whether you call it an aggression. So because Russia is also participating here, and again there are countries which are pegged against Russia as well. So इसीलिए यहाँ पर there was no clear cut language in the communique that was there with respect to the Russia Ukraine conflict. तो वो conflict है, war है, इसके ऊपर issue है. Then come to page number 5, और यही सेम चीज जो है हमारा इसके अंदर भी दे रखा होगा, हमारा इन एक्सप्लेन्ड पेज भी दे रखा होगा. मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हाउ द कैपिटल फेयर्ड इन लास्ट 5 years. But more importantly, what you should be aware about is you should do a research about what are the different kinds of poverty indexes that are there. One of the indexes that we follow is the Tendulkar report. इसके लिए what you can do is, if you're not aware about how do we enumerate poverty and ये issue क्या है पूरा का पूरा, there is a YouTube video that I have on poverty. ये हम इंडियन इकोनॉमी में भी पढ़ाते हैं. Some of you are students. Am I not audible? Am I audible now? Okay. I think I lost the connection in between. So you need to read. I'll just switch off my camera so that my bandwidth is saved. So basically, you have this multi-dimensional poverty index that you need to read about. And apart from that, you can find a video of mine on YouTube where I've explained all the entire history of poverty debate. तो history of poverty debate के अंदर ये आपके GS economics के लिए is very important. Wait a second, folks. Let me just change my place. Yes, I think I'll get a better reception now. So I was talking about poverty index. तो poverty index के लिए you can see, what you can do is you can see my videos. बेसिकली जो इकोनॉमिक के स्टूडेंट्स हैं वो यानी कि सेमेस्टर 5 के अंदर पॉवर्टी के ऊपर, डिबेट के ऊपर पूरा वो टॉपिक पढ़ते हैं. बट ये मेंस के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी, इवन फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेजरली फॉर मेंस, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी. तो एंड दिस कम्स अंडर द पोर्शन ऑफ वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ये सारी चीज़ों के अंदर भी आ जाता है ये पर्टिकुलर पोर्शन. सो पॉवर्टी के ऊपर द वीडियो दैट आई हैव इज बेसिकली एक्सप्लेनिंग पॉवर्टी सिंस 1960 से लेके अभी तक हमारी पॉवर्टी की पूरा एस्टिमेशन कैसा रहा है. So you had something called as YK अलग कमेटी, फिर लागदा वाला कमेटी, फिर उसके बाद तेंदुलकर कमेटी, फिर उसके बाद रंगराजन कमेटी. ये 4 कमेटीज के बारे में सुनोगे जब आप पॉवर्टी के बारे में सुनोगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव दिस मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. एंड व्हाट आई वांट यू टू डू इज फॉर टू अंडरस्टैंड इज मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 3 पर्टिकुलर पैरामीटर्स के ऊपर देखता है, which is one on your health, the other is on education, and the third is on standard of living. It's similar to HDI, but with some kinds of moderation. तो कुछ moderation के साथ HDI की तरह है, but इसके अंदर सब indicators भी हैं.
तो जैसे हेल्थ के अंदर कुछ सब इंडिकेटर्स हैं, एजुकेशन के अंदर सब इंडिकेटर्स हैं, एज वेल एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर सब इंडिकेटर्स हैं। तो जो आपका क्या कहते हैं, जो आपका इंटरनेशनल जो ऑक्सफोर्ड का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, आई वांट यू टू रीड दैट, एंड उसके अंदर किस किस का कितना कितना वेट है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके हिसाब से हमारी पॉवर्टी जो है काफी ज्यादा गिर गई। और ये जो पॉवर्टी दिखता है ये हाउस होल्ड लेवल पे दिखता है, हाउ मेनी हाउस होल्ड आर एक्चुअली पुअर। ठीक है, जस्ट रिमाइंड मी ऑन द ग्रुप, आई विल सेंड यू अ डॉक्यूमेंट जिसके अंदर ये सारे के सारे पॉवर्टी इंडेक्स, सारे इनइक्वालिटी इंडेक्स सारे के सारे होते हैं। इट्स कॉल्ड एज टेक्निकल नोट्स ऑफ HDR, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आती है UNDP की। ये आप जो लोग इकोनॉमिक्स में हो वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो। क्या कहते हैं, दिस थिंग टेक्निकल रिपोर्ट ऑफ UNDP। उसके अंदर ये सारे के सारे इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, HDI, योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये सारे होते हैं। सो यू नीड टू नोट कि हर एक इंडेक्स कैसे कंप्राइज हो रहा है। And what we have seen is that poverty in Delhi, in some parts of Delhi has gone down and some parts of Delhi has gone up. And it is using 12 indicators जो ओरिजिनल, ये नीति आयोग का इंडेक्स है बाय द वे, जो ओरिजिनल इंडेक्स है वो ऑक्सफोर्ड का इंडेक्स है। ये नीति आयोग का इंडेक्स है और इसके अंदर NHFS के भी वो है, डेटा है इसके अंदर। सो रीड अबाउट दिस। बट मैंने आपको बताया जो ओरिजिनल चीज पढ़नी है वो आपको पढ़नी है। यस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन, डोंट वरी, दिस सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। Then come to the editorial page. On the editorial page, you have plug the data gaps. Plug the data gaps is again is a mains oriented topic. What we already know now is that there is this new committee that is being formed. Committee जो पहले इसका नाम था Committee on Economic Statistics. अब now there's this new committee that is being made, and it is also going to go into the methodology and the sampling frame and the sample design, because this is one area which has been constantly raised by members of the Prime Minister's Economic Advisory Council. Remember the article by Shamika Ravi, by the head. So basically इन लोगों ने सबने आर्टिकल्स लिखे हैं कि हमारा जो सर्वे का मेथड है that is outdated, and that it overestimates the rural population. The response rate is very low. Basically response rate का मतलब होता है that people in higher income groups surveys, and there is a lot of underestimation, and it is a proven fact that the NSS National Statistical Service का जो consumption का survey होता है वो अंडर एस्टिमेट करता है हाउस होल्ड कंजम्पशन सर्वे को। अकाउंट एक से आ रहा है और एक NSS से आ रहा है। NSS वाला जो होता है वो कंजम्पशन को वो कर रहा है, अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, जितने भी हम मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, दे इफेक्ट आर बेस्ड ऑन गुड सैम्पलिंग मेथड्स. Your data will be as good as the sample that you've created. This is one of the bedrocks of and until unless this bedrock of yours is strong, you will not be able to have effective policy making. So you should have a clear picture and a precise picture of the economy, for which you need this updated. Another thing that we'll also see in the experience is summer classes. This is basically a parody of sorts, क्योंकि हम गर्मियों के उसमें रहते थे तो ब्रिटिश में बहुत सारा खाना, बहुत सारा आर्किटेक्चर, even in this part of the world can adopt it. But it is now because the entire Europe very hot spell of heat waves. अभी वो heat waves के बारे में हम बात करेंगे. There are two, एक का नाम शारोन और दूसरे का नाम है सेबुरस. इसके बारे में बात करेंगे जो नाम दिए गए, एंड वहाँ पर 45 डिग्री टेम्परेचर चला गया स्पेशली, एंड वी कैन नाउ टेल देम दैट अच्छा इतनी गर्मी में हम लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, तो हम लस्सी, छाछ वगैरह जो पीते हैं. So this is a kind of parody कि it's time that we are going to give them that this is how you can adopt to climate change. जो आज का न्यूज़पेपर है उसके अंदर you will see OMJO. अभी आजकल क्योंकि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे इसीलिए I'm not getting into it. वो भी एक तरीके का ऑसिलेशन है which और ओवरऑल ड्रॉट्स पे इम्पैक्ट पड़ता है. तो इफेक्टिवली what this shows is impact of climate change. पहले तो ये बता रहा है impact of climate change के अंदर आप ये बताओगे कि हाँ हीट वेव्स हो रहे हैं, और दूसरा चीज आप ये बताओगे कि साथ में Delhi is raising now, need to do a little bit of research on it. कौन सी कंट्रीज हैं आसियान में, ASEAN+6 में कौन सी कंट्रीज हैं, RCEP में कौन सी कंट्रीज हैं, ASEAN+1 में कौन सी कंट्रीज हैं, ईस्ट एशियन समिट, एशियन रीजनल फोरम, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, बे ऑफ बंगाल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन,
all of these are areas with respect to Southeast Asia या South Asia या Southeast Asia. And in all these groupings we need to note the and what is saying that of the regional geopolitics and with all these regional players as well. So अब पहले क्या होता था, हम क्या कहते थे, हम पहले कहते थे कि एशिया शुड बी लेफ्ट फॉर एशियंस, हम ये वाली अप्रोच लेके चलते थे। पिछले 50 सालों से हमारी जो अप्रोच थी, एटलीस्ट टिल 1990s, हमारी अप्रोच थी एशिया फॉर एशियंस। So we did not want, when we talked about NAM, non-aligned movement, we basically were talking about should not take parts to any of these global groupings. अगर हम अपनी अपनी जो साउथ एशिया को लेके फॉरेन पॉलिसी, तो our foreign policy was typically that we should only involve regional partners. But what we are seeing now is, because of the kind of competition that we are encouraging foreign players, like आज की डेट में we are also talking about the presence of US in the Indo-Pacific region. जब हम क्वाड की बात करते हैं, तो what is that? Indo-Pacific region में, then when we talk about I2U2, when we talk about फ्रांस के साथ जो हमने इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप के बारे में बात करी है, ठीक है, यूएस के साथ जो इंडो पैसिफिक के बारे में बात करें, श्रगिंग दैट ऑफ वेस्ट क्वाड हो गया, वी आर श्रगिंग दैट कम अ लॉन्ग वे वेयर वी रिकॉग्नाइज दैट जो ग्रेट पावर राइवलरी है उसका इम्पोर्टेंस है, इन वी नीड some kind of leverage as well to counter say China in these areas. That is what this article is talking about. So the second paragraph में आपको सारी की सारी organization मिल जाएंगी, and India has been continuously reaching out to these organizations. For example, जब ये वॉशिंगटन गए, मोदी जी जब वॉशिंगटन गए तो वापसी में वापस आते हुए इजिप्ट हुआ है, अभी जब फ्रांस गए तो वापस आते हुए अबू धाबी हुआ है। सो वी आर कनेक्टिंग विद एवरी सुपर पावर से भी कनेक्ट कर रहे हैं, जयशंकर इज इन, सो ऑल ऑफ दैट। तो एंड हर जगह पे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस द इंडो पैसिफिक रोड मैप एंड द इंडियन ओशन, एंड वी आर डिस्कार्डिंग दिस नियर सेक्रेड प्रिंसिपल इन द इंडियन फॉरेन पॉलिसी that the colonial and the extra regional power should be kept out of Indian Ocean. तो ये हमारा जो typical वो था mindset था, we are growing out of that. And then there is another led set of arrangements, that is, इसकी भी आपको countries पता होनी चाहिए, और जितनी बार पढ़ोगे उतने बार आपको याद होगा, और एग्जाम से पहले भी आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, because the way that the questions are asked, आपको कुछ you will get confused until unless you form, आपको हर एक के लिए एक्रोनिम शायद से बनाना पड़ जाए और वो आपको याद करना पड़ेगा। सो और एक क्वेश्चन जो है आपका साउथ एशिया से आता ही आता है, दिस इज ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर इंपॉर्टेंट। सो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की कंट्रीज, इंडियन ओशन सिंपोजियम की कंट्रीज, कोड ऑफ कंडक्ट, देन यू हैव, बट अल्टीमेटली इसके बाद जो नेक्स्ट फोर्थ पैराग्राफ ऑन द सेकंड कॉलम, इसमें लास्ट में ये लिखा है, द आइडियाज फॉर एशिया फॉर एशियंस फॉर पावर्स, ऑल ऑफ दिस हैव इनफैक्ट जब से हमने ये ऑर्डर करा है आफ्टर 1991, so and that's why we have been engaging in multiple, पहले हमें 2014 2018 2019 तक हमें, या इनफैक्ट 2000 लगता था कि we need to counter US, और काउंटर US के लिए हमने RIC, हमने SCO, हमने ब्रिक्स ज्वाइन किया, बिकॉज दिस वाज अ काउंटर ऑफ US बेसिकली। और आज की डेट में क्योंकि अब चाइना का थ्रेट हो गया इन ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, नाउ वी आर अगेन गोइंग बैक टू US एंड वी आर साइनिंग ऑल दीज अग्रीमेंट्स। एंड इससे मुझे वो स्टेटमेंट याद आ जाता है जो मैंने आपको बताया था कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन के एक मिनिस्टर ने दिया था, रिमेंबर दैट देयर आर नो इंटरनेशनल, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, देयर आर ओनली स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज है उस तरीके से। सो इफ यू रिमेंबर दैट यू कैन टाइप इट आउट, एंड देयर आर ओनली परपेचुअल इंटरेस्ट, यस। सो ये जो लाइन थी बुक में डाल लो, you need to use these lines, this is what will get you marks, because बाकी सबके पास content, this kind of content will get you marks. Again, आज मैं आपको end of the class में आपको मैं आज Bard दिखाऊंगा, उस Bard you can use Bard instead of Chat GPT, क्योंकि Chat GPT थोड़ा वो मैंने कहा था updated नहीं है, Bard is, और किस तरीके से, so then Oman Chandy, but a very important article, the economy for more, what this article, अपना जो ग्रोथ रेट है वो 7% करना पड़ेगा फॉर डे नेक्स्ट, मेक इट्स पर कैपिटा इनकम 6 टाइम्स। नाउ आज की डेट में इंडिया एक मिडिल इनकम कंट्री है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट आर दीस मिडिल इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं वो बियॉन्ड $10,000 पर कैपिटा, वी नीड टू पास दैट थ्रेशोल्ड ऑफ मिडिल इनकम ग्रोथ। अब so that means हमें 100 से 6 टाइम्स हो जाएगा। ऑफ कोर्स भी अराउंड मिडिल इनकम ग्रुप कंट्रीज से बाहर चले जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके होंगे यूएस, चाइना एंड बट ये अचीव कैसे करना है? इसको अचीव करने के लिए यू नीड 7% ग्रोथ फॉर द नेक्स्ट, और 7% ग्रोथ का मतलब ये होता है कि इफ योर
ICOR is 4. Now the question to you is कि what is this ICOR? लोगों को ये नहीं पता होगा कि ICOR क्या है. Now suppose जब आप एग्जाम से एक दिन पहले अपने सेमेस्टर एग्जाम से पढ़ते हो तो एक घंटे के अंदर आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ लोगे. ये होता है कि हम एक घंटे के अंदर दो चैप्टर पढ़ रहे हो. और वैसे अगर आप एग्जाम के टाइम पे नहीं हो तो आप एक महीना लग जाओ, आपको एक महीने में भी एक चैप्टर नहीं होगा. ठीक है, जैसे अगस्त में जब आप पढ़ने बैठोगे तो आप पूरे महीने में भी एक चैप्टर नहीं कर पाओगे. बट जब एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप पूरी पॉलिटी भी रिवाइज कर रहे होगे, पूरी हिस्ट्री भी रिवाइज कर रहे होगे, जो आपने पूरे पूरे दो महीने लगाए हैं. सो बेसिकली क्या हुआ, आपका आउटपुट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया. ठीक है, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. तो आई वाज टॉकिंग अबाउट इंडियन. अब ये हम जो बात कर रहे थे कि व्हाट इज दिस ICOR, तो हम लास्ट के दिनों में इतनी तेज पढ़ लेते हैं. तो बेसिकली क्या हुआ, एक घंटा जब आप आउटपुट दे रहे हो तो आप कितना, एक घंटा जब आपने एफर्ट किया तो आप कितना आउटपुट निकाल. सिमिलरली इकोनॉमी के अंदर हम क्या बहुत करते हैं, इकोनॉमी के अंदर जब आप 1% या 1 यूनिट ऑफ कैपिटल लगाया, ठीक है, अगर मैंने एक मशीन बनाई है, एक मैंने कुछ, उसकी वजह से मैं कितना आउटपुट बना पा रहा हूँ. तो फॉर एग्जांपल अगर एज अ बिजनेसमैन देखता हूँ, तो मैं एज अ बिजनेसमैन देखता हूँ कि अगर मैं एक नई मशीन लेके आता हूँ अपने बिजनेस में, तो अगर मैं एक नई मशीन लेके आता हूँ तो एक नई मशीन लाने की वजह से मेरा आउटपुट जो है वो कितना बढ़ जाता है. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशो. अगर आप कैपिटल 1% से इंक्रीज करोगे या 1 यूनिट से इंक्रीज करोगे तो आपका आउटपुट कितने से इंक्रीज होगा. और ये रेशो जितनी कम हो उतना बेटर है. क्यों? क्योंकि आप चाहते हो, इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल अपॉन आउटपुट, इसका ये फॉर्मूला है. आप चाहते हो कि 1 यूनिट ऑफ कैपिटल से मुझे 1 यूनिट अगर मैं कैपिटल लगाऊं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल जाए. ठीक है, एक घंटा मैं पढ़ूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं. तो आपका न्यूमरेटर कम होना चाहिए, डिनोमिनेटर ज्यादा होना चाहिए. कैपिटल आउटपुट ज्यादा. इंडिया के केस में ICOR इंडिया का 4 है, तो 4 यूनिट ऑफ कैपिटल ऑफ, अगर मैं 4% इन्वेस्टमेंट करें 1% GDP मिले. अगर मुझे 7% GDP चाहिए तो उसका मतलब क्या हुआ, आई मल्टीप्लाई इट बाय 7. 28% इन्वेस्टमेंट करूंगा तो जाके 28% डिवाइडेड बाय 4 विल गिव मी 7% GDP. नोट डाउन दिस फॉर्मूला ICOR. और चेंज ऑफ कैपिटल को हम बोल सकते हैं और ICOR इंडिया का 4 है. ठीक है, दैट इज इंडियाज ICOR जो पिछले कुछ सालों से, जो अगर हम एवरेज लेके चलें तो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज कि इफ आई वांट अ ग्रोथ रेट ऑफ, नीचे अगर डिनोमिनेटर में मुझे ग्रोथ रेट, तो 7% को ऊपर ले जाओगे, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कि 28% का. समझ में आया ICOR का कंसेप्ट, जो इकोनॉमिक्स से नहीं है. यू कैन यूज दिस बट उसमें थोड़ा सा भावेश, थोड़ा सा सेंस डिफरेंट है, क्योंकि वो कहता है कि ICOR चेंज हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, इम्प्रूवमेंट की वजह से, रिसर्च और डेवलपमेंट की वजह से चेंज हो सकता है, बट अल्टीमेटली स्टेडी स्टेट पे ही पहुंच जाओगे. बात कन्वर्जेंस की करता है बट रोमर का जो मॉडल है, अल्टीमेटली वो ये बात तो यही कर रहे हैं, बट वो थोड़ा डिफरेंट. बट द फिलॉसफी इज द सेम. फिलॉसफी समझ आए जिनका इकोनॉमिक्स नहीं है, नॉन इकोनॉमिक्स वालों को आ जाना चाहिए. ICOR इज अ कंसेप्ट विच मैप्स तेजी से आप आउट को, कैपिटल को या इन्वेस्टमेंट को GDP में कन्वर्ट कर पा रहे हो, और जितना कम होगा उतना बेटर होगा. ये रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा, विच बेसिकली मीन्स कि आपका आउटपुट ज्यादा एफिशिएंट है. तो सपोज मैं कहता हूँ कि अगर मेरा ICOR 2 होता, ठीक है, तो अगर मुझे 7% ग्रोथ चाहिए थी, तो 7% की ग्रोथ के लिए मुझे सिर्फ 14% इन्वेस्टमेंट चाहिए थी. 14% इन्वेस्टमेंट से मेरा काम चल जाता. बट क्योंकि मेरा ICOR 4 है, इसके लिए मुझे 7% ग्रोथ के लिए 28% इन्वेस्टमेंट चाहिए. ये ICOR जो है एफिशिएंसी का कंसेप्ट. कि कई लोग होते हैं ना कि एक दिन में पूरा सिलेबस पढ़ लेंगे, कई लोग जो है पूरा महीना लग जाएंगे और कर नहीं पाएंगे. तो वो चीज है. और यही सेम चीज ICOR कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ प्रीलिम्स के लिए. ये कंसेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इनका यूजेज जो है कहीं भी हो सकता है. प्रीलिम्स कैन बी इजीली डन इन 90 डेज. मैंने 5 बार किया 90 दिनों में, और सारे अलग अलग पैटर्न के, जितने आप पैटर्न सोच सकते हो सारे प्रीलिम्स निकाले हैं. तो आई नो कि प्रीलिम्स में 90 डेज चाहिए, बट 90 डेज विद फुल एफिशिएंसी. मेंस के साथ ऐसा नहीं है. मेंस के साथ में यू कैन नॉट प्रिपेयर मेंस बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. यू कैन नॉट डू दैट. बिफोर हैंड प्रिपेयर नहीं करा तो आप, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमें अपना, अगर अपना हमारा पर कैपिटा GDP हमें 6 for the next 25 years, which means the capital formation, the gross fixed capital formation, which is nothing but investment rate. It is called as investment rate. इन्वेस्टमेंट रेट जो होना चाहिए वो 28% होना चाहिए. और ये फिर आगे जाके बताता है कि ICOR जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमिन होता है. फॉर एग्जांपल मेनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी. अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर जाए तो ICOR कम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल आज से 7 साल पहले हम UPI यूज नहीं करते थे, तो टेक्नोलॉजी इतना वो नहीं था, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं था. आज UPI की वजह से ट्रेड कितना आसान हो गया, इन्वेस्टमेंट. अब आप कह रहे हो कि रुपी शुड बिकम इंटरनेशनल करेंसी. उस केस में कितना आसान ट्रेड हो जाएगा अगर हमारा रुपी इंटरनेशनल. टाइम विद टेक्नोलॉजी, योर कॉस्ट ऑफ दैट ICOR इंप्रूव कर सकता है.
आईसी और थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। नाउ व्हाट इट सेज इज कि अब हमें पता है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट रेट है, अगर 2022-2023 की बात करें तो इट्स अराउंड 29 एंड बट अभी भी जो इन्वेस्टमेंट है वो मेजरली कहाँ से आ रहा है, वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आ रहा है टू कम फ्रॉम दी सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर का भी डाइवर्स फील्ड से आना चाहिए। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ गिग इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ओला उबर चले जा रहे हैं, क्योंकि ये लेबर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। हमें एग्रीकल्चर में भी इन्वेस्टमेंट करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्टमेंट करना है, हमें सर्विसेज में भी, वेरी वाइड स्प्रेड, जहाँ पर वाइड स्प्रेड जिसमें जॉब्स क्रिएट हो पाए अबाउट। एंड उसके बाद ये एंड, इसके बाद वो सेकंड कॉलम के अंदर बात कर रहा है कि एआई का भी बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होगा ऑन दिस। in fact 27th on 27th I'm giving a lecture, there's something called Y20। अगर आपने जैसे G20 होता है वैसे B20 भी हो गया, business 20, वैसे youth, there is this speaker and I'll send you the invite if they allow, you can also attend that this thing, जिसमें मैं बात ही इसके ऊपर कर रहा हूँ, the impact of AI, the impact of industry, बोलते हैं इंडस्ट्री 4.0। अगर आप इंडस्ट्री 4.0 पढ़ोगे तो होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड यू कैन रीड दिस। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये फोर्थ फेज चल रहा है। पहला फेज शुरू हुआ था 9, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल का जब आए थे और डीजल इलेक्ट्रिक इंजन आए थे तो वो सेकंड फेज शुरू हुआ था। थर्ड फेज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरू हुआ था विद कमिंग ऑफ इंटरनेट और एआई, एमएल, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ दिस बेसिकली इन्वॉल्व्स द फोर्थ फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सो जो फोर्थ फेज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, वो जो है वो लेबर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, कॉल सेंटर की जॉब। इनफैक्ट इफ यू सी राइट नाउ टीचिंग की जॉब्स और इनफैक्ट जो चैटबॉट होते थे, अब जो चैटबॉट है, जो हम कॉल सेंटर कॉल करते थे, अगले 10 साल में कॉल सेंटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बार्ड एंड चैट जीपीटी विल रिप्लेस एवरीथिंग। व्हाटएवर यू वांट टू डू, यू जस्ट आस्क, वो आपको बता देगा कि क्या स्टेप्स करने हैं। सो यू विल हैव दिस फाइन ट्यूनिंग ऑफ ऑल ऑफ दिस। आपको बहुत सारे एरियाज में लोगों की, जहां पर फिजिकल इलास्टिक क्लाइमेट चेंज की वजह से भी हमें वी हैव टू चेंज अ पाथ। हमने 2000 वी आर सेड दैट 2000 आर फुटप्रिंट टू नेट शिफ्ट और प्रोडक्शन बेस शिफ्ट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे आउटपुट के ऊपर भी पड़ेगा। सो देयरफॉर जो हमारा 8-9% का ग्रोथ होता है उसकी जगह पे हम दैट इज समथिंग दैट द फास्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी, बट इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा जीडीपी वी आर 149 आउट ऑफ 190, एंड दैट इज समथिंग दैट सो दिस इज an important article for economics. Then coming to why Kuno cheetahs are at extra risk due to radio collars, ये बेसिकली आर्टिकल वही बेसिकली बात बता रहा है कि रेडियो कॉलर्स जो अफ्रीका में क्या होता है, अफ्रीका में the rainfall is not that much and because it's not so humid, जो जो उनका जो इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। बट यहाँ पर व्हाट वी आर सीइंग इज रेट और ह्यूमन टेम्परेचर एंड दीज कैट्स आर नॉट अडेप्टेबल। आप जगह से दूसरे नेचुरल जगह पे ले जाओगे, उसका ये मतलब नहीं कि वो रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट टेक अ फिश आउट ऑफ सी एंड पुट इट इनटू अ पॉन्ड, वो नहीं चल पाएगी। बट और पॉन्ड की फिश को उठा के अगर आप सी में डाल दो तो वो भी मर जाएगी, क्योंकि वो उसका जो एनवायरमेंट है, उसका जो इकोसिस्टम है, उसको वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी। सिमिलरली यहाँ पर भी उसका इकोसिस्टम चेंज हुआ इकोसिस्टम, देयर इज दिस इम्पैक्ट ऑन देयर कॉलर्स, और उनका कॉलर की वजह से वहां पर इन्फेक्शन द एरिया इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। देन व्हाई यूरोप हीट वेव्स हैव गॉट द नेम्स फ्रॉम ग्रीक। ये ग्रीक माइथोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट इटली जैसा कंट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। नदर्न एरिया में ठंड हो रही है, मिडिल में नॉर्मल गर्मी हो रही है, थोड़ी सी ज्यादा गर्मी हो रही है, साउथ में तो बिल्कुल एकदम अफ्रीका बन गया है, 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। and there are these two anti-cyclonic systems that are there. Systems आपने पढ़ लिए होंगे ऑलरेडी। साइक्लोनिक सिस्टम जो होते हैं वो ट्रॉपिक्स के अंदर होते हैं, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम्स भी बैठते हैं सब वेरी हाई प्रेशर जोन्स। साइक्लोन क्या कहता है, साइक्लोन जो होता है वो हाई प्रेशर को लो प्रेशर की तरफ ले जा रहा है। बेसिकली अर्थ के सरफेस के पास लो प्रेशर है और उसकी वजह से इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है उसकी वजह से कंडेंसेशन हो रहा है, और बहुत ज्यादा है तो कन्वेक्शनल रेन हो रही है या साइक्लोन क्रिएट हो रहे हैं। यू विल रीड अबाउट इट इन। और हाई एंटी साइक्लोन में क्या हो रहा है, एंटी साइक्लोन में बहुत बड़ा हाई प्रेशर और ऊपर लो प्रेशर है, ठीक है। तो वहां से ऊपर से नीचे जो है हवा आ जा रही है, डिसेंडिंग एयर हो रही है। डिसेंडिंग एयर कैन नेवर ब्रिंग रेनफॉल, इट विल ब्रिंग ओनली हीट, इट विल ओनली ब्रिंग क्या कहते हैं, ड्राई स्पेल्स, ड्राई एंड हीटेड environment. So this is this. Then another article, new opportunities, old issues, respect to India और इंडिया श्रीलंका रिलेशन। जब भी कोई ट्रेडिशनली विजिटली इंडिया आ जाता था, बट इस बार 1 साल से ज्यादा लग गया, एंड वी हैव नॉट इन द पास्ट वी हैव नॉट हैड वेरी हेल्दी रिलेशन, ऑल्दो वी हैव बीन लेंडिंग एंड हमने आईएमएफ के साथ क्योंकि हमने लोन दे दिया इसलिए now even IMF has said, and of time Mara, they are already holding, there's a quote called Humban Tota. I want you to see the map of
Then I also want you to search about, जब आपके पास time हो, string of pearls strategy, strategy and salami slicing. Salami slicing. ये दोनों strategies are being deployed by China on India. ठीक है, string of. Apart from that, अब तो एक तो हमन टू शिप है युआंग यान, which is described as a scientific vessel, research vessel, but it is actually a surveillance vessel, or that has recently docked in Sri Lanka. And apart from that, suspicions बहुत सारे, for example, Adani Group was a wind farm, or it is said that the political pressures that was given. So these are all issues that are there. And then this needs to be resolved. अभी जो उनका crisis is also needs at because what we are also seeing is emergence of जो पहले LTTE होती थी, अब वो LTTE तो खत्म हो गई, बट तमिल जो उनका जो ग्रुपिंग है वो वापस मिलनी शुरू हो गई है, एंड दैट माइट लीड टू पॉलिटिकल इकोनॉमी पेज. नाउ अभी तक इंडिया के पास जो है वो अपना 5 हमने ऑयल रिजर्व्स रखे हुए हैं इन अंडरग्राउंड फीड के. हमने ये जो ऑयल रिजर्व्स रखे हुए हैं कहाँ रखे हुए हैं, 5 मिलियन टन के. Apart from that, what we are planning to do is that we are planning to natural gas in terms of, या फिर हम उसको देखते हैं जो reservoirs होते हैं. बेसिकली क्या होता है कि सपोज आपने क्या किया, आपने से अर्थ की ऑयल और गैस निकाल लिया. अब वो जहां से आपने निकाला वो खत्म हो गया पूरा, उसने आप सक्ड इट ड्राई. अब वहां पर भी यू कैन स्टोर ऑल दिस नेचुरल गैसेस, ऑल्सो एक्ट एज reservoirs ऑफ. एंड देन सॉल्ट caverns. आई वांट यू टू रीड अबाउट व्हाट आर दिस सॉल्ट caverns, कि एक आर्टिफिशियली कैसे क्रिएट कर सकते हैं सॉल्ट, क्या कहते हैं, caverns इन स्टोर दिस नेचुरल गैस. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऊपर अबव द अर्थ हम LNG के फॉर्म में या अंडरग्राउंड गैस के फॉर्म में भी इसे स्टोर कर सकते हैं, टू बिल्ड दिस नेचुरल गैस का, सो दैट जस्ट इन केस कोई इशू आ जाए, कोई क्राइसिस आ जाए, तो वी हैव दिस फॉर रनिंग आवर इंडस्ट्री. सो रीड दिस आर्टिकल. द अदर आर्टिकल, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, रूरल इंप्रूवमेंट्स लेड बाय बिहार, MP, UP. I've already told you to read about कि ये कौन से पैरामीटर्स हैं. 12 के 12 पैरामीटर्स नीति आयोग के, 10 पैरामीटर्स ऑक्सफर्ड के. ये आपको सारे के सारे पता होने चाहिए. उनका रैंकिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए. इंटरनेशनल रैंकिंग में इंडिया का कितने पुअर है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. सो दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू. लास्ट न्यूज इज पेज नंबर 19, स्पोर्ट्स. और इसके ऊपर हम आज के न्यूज़पेपर के अंदर भी बात करेंगे. बेसिकली कल जब बात करेंगे कि विक्टोरिया वाज सपोज टू होस्ट the 2026 Commonwealth Games, but it has recently backed out of that, and it said that it is too expensive to host such games. It is going to cost us $5 billion, and we are only expected to earn $1 billion. So should we look at, and does holding these expensive games, ग्रीस का क्राइसिस जो शुरू हुआ था जब उसने 2004 उन्होंने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया था और वो रिकवर नहीं कर पाए पैसा. सेम चीज प्रॉब्लम हुई टोक्यो के साथ भी. सेम प्रॉब्लम तो बेसिकली ओलंपिक्स के साथ भी जब ये प्रॉब्लम हो सकती है, जहां पर वर्ल्ड वाइड लोग आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड क्या कहते हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, वर्ल्ड वाइड स्पोर्ट्स. तो व्हाट अबाउट दिस एम्पायर गेम्स, इनको पहले एम्पायर गेम्स भी बोलते थे. तो व्हाट अबाउट दिस एम्पायर गेम्स, G20 गेम्स, एंड जिनका कवरेज भी इतना ज्यादा नहीं है. डज इट मेक इट वायबल? और इसीलिए डरबन भी बैकआउट करा. डरबन ने 2012 में डरबन हैड, बट एंड अब जो है इस बार जो है इसने विक्टोरिया ने कर लिया. और ऑस्ट्रेलिया, और एथिक्स या एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से डज इट मेक्स ऑफ डॉलर, सो डज इट मेक सेंस? दैट इज that you might. Last, page number 20, read about what is this WADA and what is NADA, World Anti-Doping Agency and National Anti. That's it, folks. That's it from my side. I will now meet you tomorrow morning and we'll do a meditation and journaling, as well as if you have anything to ask, you can put it on the group.